Hello students and welcome to the 12th lecture of derivative. The last class we have discussed about what is a parametric function and the derivative of parametric function. In this class also we are going to solve some problem about parametric function, and then later we are going to discuss about the derivative of a function with respect to another function. So let's get started with the first questions. The first question on the board is sin x is equal to 2t by 1 plus t square, tan y is equal to 2t by 1 minus t square. Then find dy by dx. Okay, so solution of this question. So first given दिया है हमें sin x is equals to 2t by 1 plus t square. Okay, sin x is equal to 2t by 1 plus t square. Okay, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा. let your t is equals to tan theta. Let t is equals to tan theta. Then सब्सटीट्यूट करेंगे. let t is equal to then sin x is equals to क्या हो जाएगा आपका? sin x is equals to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Okay, और sin x is equals to 2 tan theta by 1 plus tan square theta is the formula for sin 2 theta. Okay, this is a formula for sin 2 theta. तो ये sin कट कैंसल्स. सो x is basically 2 theta. x is basically 2 theta and t का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट किया हम? t इज इक्वल टू tan थीटा. सो थीटा वी कैन बी रिटन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ t. ओके, सो x वी कैन राइट 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स ऑफ t. सो वी गेट x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t. सो dx by dt, dx by डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t is equals to 2 into tan इनवर्स t का डेरिवेटिव. tan इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 by 1 plus t square. 1 by 1 plus t square. तो आंसर dx by dt is 2 by 1 plus t square. This is our equations 1. Then move on to our second equation. y is equals to given 2t by 1 minus t square. So tan y is equals to, in this case also put t is equals to tan theta. Okay, put t is equals to tan theta. In other words we can type this is tan inverse 2t by 1 minus t square, and this is the formula for 2 tan inverse t. Clear cut? This is the formula for 2 tan inverse of t. And here dy by dt is also 2 by 1 plus t square. यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स t है, तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना? 1 by 1 plus t square. तो 2 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 2 by 1 plus t square. तो ये दोनों लगभग सेम है. इस केस में मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करके क्या, इस केस में आपका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसकी बेसिस पे हमने किए हैं. देखो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2t by 1 minus t square. तो y इज इक्वल्स टू ये जो tan इनवर्स 2t by 1 minus t square इज द फॉर्मूला फॉर 2 tan इनवर्स t. अब मैं बता दूं आपको कि 2 tan इनवर्स t का 3 ठो फॉर्मूला था. ओके, 2 tan इनवर्स t का 3 ठो फॉर्मूला था आपका. एक था tan इनवर्स 2t by 1 minus t square, अनदर sin इनवर्स के फॉर्म में 2t by 1 plus t square, और अनदर cos इनवर्स के फॉर्म में 1 minus t square by 1 plus t square. तो ये 3 तो फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स t का. ओके, सो dy by dt 2 by 1 plus t square. दिस इज आवर इक्वेशन 2. तो अभी dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt. So 2 by 1 plus t square divided by 2 by 1 plus t square. So all are got cancelled. This is 1. Okay, 2 cancel, 1 by t square cancel. So dy by dx is equals to
1 एंड दैट्स योर आंसर। ओके, तो फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसे सब्स्टिट्यूट के हिसाब से भी कर सकते हो। मैंने एक केस में फॉर्मूला पुट कर दिया और एक केस में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, if x is equal to a to the power sin inverse t under root y is equals to under root of a to the power cos inverse t, so prove that dy by dx is equals to minus y by x, minus y by x. So we have to prove that, this is prove that कि dy by dx is equal to minus y by x। देखो ये सिंपल, x is equals to आपका a to the power sin inverse t। तो इस केस में अगर डायरेक्ट तुम डेरिवेटिव करना चाहोगे, dx by dt निकालना चाहोगे चेन टूल की मदद से, तो इट विल बी वेरी लेंदी। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा, देखो ये पावर के फॉर्म में बहुत, ओके ये बहुत पावर के फॉर्म में है, हम इसको लॉग ले लेते हैं ताकि काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log x और ये क्या है, दिस इज log ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। इसका जो ये रूट ओवर है, इसका मतलब क्या है, a टू द पावर साइन इनवर्स t, इसका पावर हाफ है तो इसका पावर हम हाफ लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 जो पावर में है, अगर log की फॉर्मूला में पता है कि log a टू द पावर m इज इक्वल्स टू m log a, जो भी पावर में होता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है। ओके, सो दिस बिकम योर log x बिकम 1/2 log ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। देखो अभी ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स t भी तो पावर में ही है, तो उसको भी कोफिशिएंट में ले आते हैं। ठीक है, ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो log x इज इक्वल टू दिस ऑल्सो बिकम्स टू कम टू द कोफिशिएंट, तो दिस इज 1/2 साइन इनवर्स t log a। log x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t इंटू log a। तो अभी हम करेंगे इसका डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट with respect to x, so with respect to t, तो ये बन जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अभी ध्यान से देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसको लिख दो बाहर, log a कांस्टेंट है मतलब log a भी कांस्टेंट, तो log a भी कांस्टेंट। ओके, और साइन इनवर्स, हमें सिर्फ साइन इनवर्स t की डेरिवेटिव निकालना है। साइन इनवर्स t की डेरिवेटिव कितना है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, 1/1 माइनस टी स्क्वायर। सो dx बाई डी टी कितना हो गया, x इंटू 1/2 log a 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में y इज इक्वल्स टू कंसिडर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करो कि y इज इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर cos इनवर्स t, उसका जो पावर है हाफ। तो सेम log ले लेते हैं बोथ साइड, log y क्या हो जाएगा, तो log y हो जाएगा 1/2 log cos इनवर्स a टू द पावर cos इनवर्स ऑफ t, अगेन log y इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ t इंटू log a। यहाँ पे जो सीन हुआ वहीं पे एग्जैक्टली सेम, सिर्फ यहाँ log x log y ऐसे कुछ छोटा छोटा डिफरेंस है। ओके, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा 1/y
dy by dt is equals to 1 by y dy by dt is equals to 1 by 2 कांस्टेंट, log a भी कांस्टेंट, और cos इनवर्स t का जो डेरिवेटिव वो कितना है -1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। सो dy by dt is equals to y times 1 by 2 log a -1 by 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, now this is our equation 2. We have our the first equation, we have our second equation. Then it is very easy to find the dy by dx. Now what is dy by dx? What is dy by dx? So simple, it is nothing but dy by dt by dx by dt. And what is dy by dt? dy by dt is -1 को इधर ओके y हाफ log a इंटू -1 by 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई dx by dt। फर्स्ट इक्वेशन वहाँ है x इंटू हाफ log a 1 by 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। देखो सब कोई सेम है, यहाँ y है यहाँ x है, बाकी हाफ हाफ कैंसिल, लॉग ए कैंसिल। यहाँ है -1 by 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ है 1 by 1 माइनस टी स्क्वायर रूट ओवर। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, बचा कितना, सिर्फ माइनस बचा है, तो ये -y by x। दिस इज आवर dy by dx। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, लेट मी टेल यू अनदर मेथड टू फाइंड आउट। अनदर वेरी इजी मेथड है और एक, वही भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेथड बड़ा ही सिंपल है। कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है उसको हम उसकी पैरामीटर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पैरामीटर कौन है? टी पैरामीटर है। हम अगर किसी तरह से टी को रिमूव कर देने के बाद एक इक्वेशन आएगा, जो भी एक इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव निकालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। x इज इक्वल्स टू हमें दे दिया है, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर साइन इनवर्स t का रूट ओवर, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। ओके, देखो यहाँ पे रूट ओवर मतलब दोनों की फॉर्म सेम है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x और y को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी तरह से, तो मल्टीप्लाई करते ये भी रूट ए इंटू रूट भी होता क्या भाई, रूट ओवर ऑफ ए भी होता। तो दिस इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ओके, सो एक्स वाई क्या हो गया, अभी वो वाला सिंपल फॉर्मूला यूज होगा कि ए एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बड़े प्यार से a टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। और ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला में तुम पढ़े हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो दिस इज नथिंग बट a टू द पावर पाई बाई 2 का रूट ओवर। ओके, सो एक्स वाई क्या बन गया, a टू द पावर पाई बाई 2 का रूट ओवर बन गया। अभी हम डेरिवेटिव कर दो, अभी देखो t गायब हो गया, t एलिमिनेट हो गया, तो t हो गया रिमूव। तो इस बेसिक सा जो इक्वेशन आ गया, इसको हम अगर थोड़ा सा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो डायरेक्ट करता हूँ, ये देखो एक्स वाई, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
तो ये यूवी रूल यूज होगा। देखो यूवी रूल यूज होगा, x इंटू वाई है तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो कि है 1 इज इक्वल्स टू, देखो a कांस्टेंट है और पाई बाई टू, पाई भी तो कांस्टेंट है तो पाई बाई टू भी कांस्टेंट, तो a टू द पावर पाई बाई टू कांस्टेंट, ये टोटल एक कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है 0। ओके, डेरिवेटिव होता है 0। सो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई और dy बाय dx is equals to minus y by x and that's your answer। ओके, ये भी एक छोटा सा एक इजी मेथड था, तुम ऐसे भी कर सकते हो पहले वाला मेथड से, सेकंड वाला मेथड से भी कर सकते हो। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। x is equal to 3 cos t minus 2 cos cube t, y is equal to 3 sin t minus 2 sin cube t, find dy by dx। Very simple, 3 cos t minus 2 cos cube t, y is equals to okay, so let us find out first dx by dt। okay, differentiate with respect to t करेंगे, तो 3 cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो 3 cos t का होगा माइनस 3 साइन t माइनस, देखो 2 तो कांस्टेंट है, cos क्यूब t का जो डेरिवेटिव है पहले क्या होगा, cos क्यूब t का डेरिवेटिव मतलब पहले फर्स्ट ये जो कोफिशिएंट जो पावर है वो कोफिशिएंट में आता है, x n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स टू द n माइनस 1 उसी फॉर्म में है, तो ये होगा पहले 3 cos square t फर्स्ट, देन अगेन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल द डेरिवेटिव ऑफ cos t which is minus sin t, which is minus sin t। ओके, तो कॉमन कितना जा रहा है, अगर ध्यान से देखो कॉमन जा रहा है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 3 साइन टी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 भी दोनों तरफ है, माइनस साइन टी भी दोनों तरफ है, मतलब ये दोनों टर्म में है। ओके, माइनस ये यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा, ये माइनस चला गया लेकिन ये माइनस है हमारे पास, तो माइनस 2 cos square t। दिस इज आवर dx by dt एंड फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो y अभी क्या दिया है, y is given 3 sin t minus 2 sin cube t। So what is dy by dt? 3 sin t का डेरिवेटिव, sin t का cos t मतलब ये 3 cos t सिंपल, माइनस 2 इंटू साइन क्यूब t का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट होगा क्या इसी फॉर्म में है, तो ये दिस बिकम 3 sin square t, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी व्हिच इज cos t। ओके, तो देखो यहाँ भी 3 cos t है, यहाँ भी 3 cos t है, तो 3 cos t को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कितना बचा 2 sin square t। ओके, सो नाउ dy by dx is nothing but dy by dt divided by dx by dt। So dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt, तो dy by dt कितना है आपका, dy by dt 3 cos t into 1 minus 2 sin square t, 3 cos t into 1 minus 2 sin square t by dx by dt कितना है आपका, यहाँ पे कॉमन कितना लिए थे, माइनस 3 साइन टी कॉमन लिए थे, सॉरी माइनस 3 साइन टी अगर कॉमन लेंगे तो माइनस 3 साइन टी 1 माइनस 2 cos square t, 1 minus 2 cos square t। ओके, सो 3 get cancel, cos t by sin t is here is a cot t बाई, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, इस माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो ये तो है 1 minus 2 sin square t,
इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, उल्टा हो जाएगा, माइनस चला गया अंदर, तो इट विल बिकम्स 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1. तो दिस इज cot t एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्चुअली cos 2t का. cos 2t का फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, इनफैक्ट 4 फॉर्मूला है. cos 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी. तो ये भी cos 2t का फॉर्मूला है, ये भी cos 2t का फॉर्मूला है. सो cos 2t बाय cos 2t, तो cos 2t कैंसिल, तो आंसर आपका cot t. सो cot t इज योर आंसर. यहाँ -3 sin t कॉमन लिए थे, तो इट इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी. दिस इज नथिंग -3 sin t cos 2t. सॉरी, इस माइनस को उधर जाएगा तो ये cos 2t है. ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ अगले टॉपिक में चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो एक ही फंक्शन के रेस्पेक्ट से अनदर फंक्शन की डेरिवेटिव, और एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस. इट्स वेरी सिंपल. ओके, काइंड ऑफ सिमिलर विद द पैरामीट्रिक फंक्शंस. सो यहाँ पे दो फंक्शन है. लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड अनदर फंक्शन g ऑफ x है. लेट हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू g of x be two functions. यहाँ दो फंक्शंस हैं, एक y इज इक्वल टू f ऑफ x और एक z इज इक्वल्स टू g ऑफ x. नाउ हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x with respect to g of x. हमें f of x की डेरिवेटिव निकालना है with respect to g of x. इसका मतलब क्या है? d of f of x मतलब y, तो dy by निकालना है dz. ओके, ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स आर द फंक्शन ऑफ x. ये दोनों क्या है? फंक्शन ऑफ x है क्लियरली. Okay, f of x and g of x are function of x. तो हमें तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आराम से निकाल सकते हैं हम. वी कैन इजीली फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें दिया है वाई एफ ऑफ एक्स दिया है. ओके, वाई इज इक्वल टू दिया है एफ ऑफ एक्स. तो हम क्या निकालेंगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स. जेड इज इक्वल टू क्या दिया है? जी ऑफ एक्स. तो हम निकालेंगे डी जेड बाय डी एक्स, जो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा. अभी अगर हमें चाहिए टू फाइंड डी वाई बाई डी जेड, आपका फॉर्मूला डी वाई बाई डी जेड का फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स. ओके, अगर हमें कभी डी जेड बाय डी वाई चाहिए तो इसका जो फॉर्मूला है दिस इज डी जेड बाय डी एक्स बाय डी वाई बाय डी एक्स. अगर f और g दो फंक्शन है, बोथ आर द फंक्शन ऑफ x ओनली, देन टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब f विद रिस्पेक्ट टू g निकालने के लिए पहले f का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय g का डेरिवेटिव, और वाइस वर्सा डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू f निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव ऑफ g डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ f. ओके, सो दिस इज नथिंग बट इस यहाँ पे हम कुछ चीज ऐड भी कर सकते हैं. दिस इज नथिंग एफ डैश एक्स बाय g डैश x.
x। यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे सो दिस इज नथिंग बट g डैश ऑफ x बाय f डैश ऑफ x। ओके, g डैश ऑफ x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये फॉर्मूला को थोड़ा नोट डाउन कर लो। देन मूविंग ऑन टू सम प्रॉब्लम्स। पहले छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन आपका है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो साइन एक्स की डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। सपोज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और z इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, then we have to find out d sin x by d cos x, which is dy by dz, which is nothing but dy by dx divided by dz by dx। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो ये तो सिंपल है, इसलिए तो dy by dx कितना होगा, dy by dx इज ऑब्वियसली y sin x, तो dy by dx इज cos x। dz by dx कितना होगा, cos x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ sin x, सो dy by dz इज इक्वल्स टू dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx, विच इज इक्वल्स टू आपका cos x by minus of sin x, which is minus of cot x. That is your answer. The derivative of sin x or d sin x by d of cos x is nothing but minus of cot x. That's your final answer. Okay, so pause the video to note it down. Let us discuss few problems about the derivative of a function with respect to another function. So your first questions, root x with respect to x square, under root of x with respect to x square. So f of x is clearly here under root of x, g of x is x square, and we are going to find out df by dz. Okay, so first let us find out f dash of x. What will be the f dash of x? Derivative of this root x with respect to is obviously 1 by 2 root x. So what is g dash of x? We can say g dash of x would be 2x, x square का derivative 2x. So we are going to find out df by dg, df by dg with respect to derivative of f means derivative of root x with respect to x square. So this is nothing but df by dx divided by dg by dx. Oh, this is nothing but f dash of x by g dash of x. This is nothing but 1 by 2 root x by 2x. तो कितना हो गया 1 by 4x root x. Okay, so df by dg is equals to 1 by 4x root x. That's your final answer. Okay, pause the video to note it down. Our second questions. Okay, here our f of x is 1 minus cos x by 1 plus cos x. Here our gx is 1 minus sin x by 1 plus sin x. So we are going to find out df by dg. So let us first find out what is f dash of x or df by dx, which is nothing but f dash of x. तो यहाँ पे देखो u by v रूल का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा।
तो u बाई वी रूल का फॉर्मूला क्या है? u बाई वी रूल का जो फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश बाय वी स्क्वायर। ओके, तो फास्ट ऊपर वाला का डेरिवेटिव, ऊपर वाला का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, 1 का डेरिवेटिव तो कितना है? ओके, लिख देता हूँ आपके लिए, डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स होल इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी बाय इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लगी, ये माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स और एक फिर माइनस साइन एक्स, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस कॉस एक्स तो साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखो माइनस और माइनस साइन एक्स मिलके हो जाएगा प्लस साइन एक्स, तो उस प्लस साइन एक्स को ये माइनस माइनस साइन एक्स हो जाएगा मिलके हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस ये कॉस एक्स का है होल स्क्वायर। तो कॉस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर डी एफ बाई डी जी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका। सो डी एफ बाई डी एक्स, सॉरी डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। ओके, अभी निकालेंगे डी जी बाई डी एक्स निकालेंगे, इसको नोट कर लो, नोट करते करते जाओ। तो जी एक्स तो वही है, तो अभी हम निकालेंगे जी डैश एक्स, इसका मतलब डी जी बाई डी एक्स, ये दोनों सेम। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, ये नीचे होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर में पहला वाला का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन पहले है इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस कॉस एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स कॉमन चला गया। ओके, तो यहाँ तो प्लस बचा, तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया माइनस 2 कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी जी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हमें मिल गया डी एफ बाई डी एक्स मिल गया, डी जी बाई डी एक्स भी मिल गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डी एफ बाई डी जी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जी और डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस। सो डी एफ बाई डी जी इज नथिंग बट डी एफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एक्स। तो कितना होगा यहाँ 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
-2 cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 हो गया कैंसिल। ओके, तो ये देखो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ओके, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा ऊपर चला, ये हो जाएगा नीचे। तो माइनस साइन एक पहले है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो 10x है बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। ओके, अभी तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो सिंपल यहाँ भी पहले निकालेंगे डी एफ बाई डी एक्स, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंपल। नेक्स्ट निकालेंगे जी एक्स, कितना दिया है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो अभी निकालेंगे जी डैश ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट डी जी बाई डी एक्स, दोनों सेम है। तो tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x के जगह यहाँ कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हुआ है, तो ये होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका फिर स्क्वायर। ओके, x की जगह जो भी है उसका हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर की ओके इनटू अकॉर्डिंग टू द चेन रूल d बाई डी एक्स ऑफ अगेन दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, बन जाएगा देखो 1, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस इज रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स। ओके, फिर अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कितना बन रहा है यहाँ 1 बाय ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे 2 पे 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर हो गया यहाँ का x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, सो ये आपका हो गया डी जी बाई डी एक्स, दिस इज डी एफ बाई डी एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डी एफ बाई डी जी, डी एफ बाई डी जी विच इज नथिंग बट डी एफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एक्स। ओके, तो डी एफ बाई डी एक्स कितना हो रहा है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ रूट हो गया, ये आ जाएगा पूरा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो आज का जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देखो
सो डी एफ बाई डी जी इज, ये चला जाएगा ऊपर, सो ऊपर में होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, नीचे हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, दैट्स योर आंसर. दिस इज डी एफ बाई डी जी. सो pause the video to note it down. Now question number 4. F of x is tan inverse 1 plus sin x by 1 minus sin x का रूट ओवर, और g ऑफ x दिया है आपका log ऑफ 1 plus cos x by 1 minus cos x. ओके, तो फर्स्ट हमें निकालेंगे डी एफ बाई टी एक्स, विच इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, तो पहले थोड़ा सा रुको, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, एफ एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस साइन 2x. क्या फॉर्मूला है? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. तो 1 प्लस साइन 2x की जो फॉर्मूला है वो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ लेकिन 1 प्लस साइन एक्स है, 2x नहीं है, तो एंगल पे हो जाएगा आधा, तो ये बन जाएगा देखो tan इनवर्स 1 cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी रूट ओवर है. तो दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो गए, तो कौन बचा है देखो, दिस इज नथिंग बट cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स. ओके, सो tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, cos डिवाइड कर दो हर जगह में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स. ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ का एक फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो दिस इज फॉर्मूला फॉर tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला. तो सिमिलरली यहाँ किसका थीटा की जगह है x, तो tan पाई बाय 4 प्लस x इसका फॉर्मूला है. अभी tan इनवर्स और tan हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा सिर्फ पाई बाय 4 प्लस x. ओके, तो यहाँ आपका f ऑफ x, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस x. ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x. f ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस x. एक छोटा सा मिस्टेक, सब x बाई 2 होगा हर जगह, x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2. सो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 है, सो एफ डैश x हो जाएगा 1 बाई 2. देखो कैसे हुआ, और एक बार समझा रहा हूँ. 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर. सो 1 प्लस साइन x की जो फॉर्मूला है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर. तो हर जगह ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, रूट ओवर कैंसिल हो गया, रूट ओवर और स्क्वायर. तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, तो ये हो गया हर जगह में cos x बाई 2 डिवाइड किए तो 1 प्लस टेन x बाई 2 बाई 1 माइनस टेन x बाई 2. और ये इसके फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, दिस इज tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, f ऑफ x इक्वल पाई बाई 4 प्लस x बाई 2. सो f ऑफ x इक्वल पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, f डैश ऑफ x इक्वल टू हाफ. ओके, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई 2. नेक्स्ट,
जी ऑफ एक्स आपको दिया है लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ भी फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा is 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Okay, formula 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So यहाँ पर 1 plus cos x है, 1 plus cos x है, तो ये कितना होगा 2 cos square x by 2. ओके, ये कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट लॉग कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2. कॉट इसका मतलब कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, सो दिस इज नथिंग बट ये कॉट एक्स बाई 2 का पूरा होल स्क्वायर है, तो ये लॉग बाहर में लॉग है, तो इसका जो भी पावर होगा कोफिशिएंट में आ जाएगा कि नहीं, तो कोफिशिएंट में अगर आएगा तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2 लॉग कॉट एक्स बाय 2. ओके, 2 लॉग कॉट एक्स बाय 2. तो ये आपका इक्वेशन 1 है, एफ ऑफ एक्स पहले निकल गया, दैट इज 1/2. नाउ देखो तो g ऑफ x का वैल्यू यही है. अभी हम अगर g डैश ऑफ x निकालेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, log ऑफ समथिंग, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई एक्स, सो log cot x बाई 2 बराबर 2 बाय cot x बाई 2. अगेन d बाई डी एक्स ऑफ cot x बाई 2, दैट इज 2 बाय cot x बाई 2. तो कॉट का फॉर्मूला है माइनस कोसेक्स स्क्वायर थीटा. कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव कितना है कॉट एक्स का माइनस कोसेक्स स्क्वायर, तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x बाई 2 है, थीटा की जगह x बाई 2 है, इनटू फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई 2. सो ये 2 हो गया आपका कैंसर. कॉट एक्स बाई 2 को अगर साइन एक्स बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, सबके साइन साइन के फॉर्म में लिखो. देखो कॉट तो नीचे है, तो 1 बाई कॉट मतलब 10, 10 मतलब साइन बाई कॉस, तो दिस इज नथिंग बट साइन एक्स बाई 2 बाय कॉस एक्स बाई 2. ओके, देखो कॉट नीचे है ना, कॉट नीचे है, 1 बाई कॉट है, इसका मतलब 10, 10 मतलब साइन बाय कॉस, और यहाँ है -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, सॉरी एक साइन एक्स बाई 2 पे साइन एक्स 2 हुआ कितना -1 बाय, एक कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. ओके, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 है. देन ये आपका निकल गया क्या g डैश ऑफ x, तो अभी हम निकालेंगे df बाई डी जी, दैट इज इक्वल्स टू df बाई डी एक्स, df बाय dx बाय dg बाय dx. ओके, सो df बाई dx तो 1 बाई 2 है, ये निकल गया 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय -1 बाय साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. -1 बाय साइन एक्स बाई साइन, तो ये देखो ये पूरा ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट df बाई डी जी विल बी साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाय माइनस एक साइन है और ये 2 आ जाएगा नीचे,
ओके तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल एक 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 2 sin x/2 cos x/2, दिस द फॉर्मूला sin 2 थीटा, तो थीटा की जगह x/2 है तो 2 थीटा हो जाएगा x, दिस इज sin x/4, तो आंसर है आपका माइनस sin x/4. सो df/dg वुड बी माइनस sin x/4. दैट्स योर फाइनल आंसर. Okay, so pause the video to note it down. So that's it for today's class. So that's it for today's class. In the next class, we are going to discuss about the derivative of higher order or higher order derivative, second order derivative or third order derivative, like that. Okay, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो. Bye bye, take care, see you in the next class.